Hello everyone. So today what we'll do is we will take up linear arrangement ka some basics. Now some of you who've been preparing for CAT or for that matter other entrance exams, आप लोग already शायद linear arrangement से familiar हो गए. So maybe it might be useful, it might not be, but I think there are few points which we tend to ignore. हम question solve कर लेते हैं, but there are certain tricky points which might come in at times in the question and वो relevant हो जाते हैं. Which is why my request is that before you begin practicing a lot of questions on this topic, आपको पहले ये basics cover कर लेना चाहिए. It's a very short video where I will cover some of the important basics only for linear arrangement. I will have a separate video for circular arrangement as well. So let us begin with this. तो अब देखो linear arrangement, if I look at especially from CAT point of view, how important is it? तो अगर मैं कैट का बात करूंगा तो पिछले काफी सालों से दे हैव नॉट बीन गिविंग एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन ऑन अरेंजमेंट, राइट? अब आप बोलोगे कि अरेंजमेंट का तो कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट. रीजन बीइंग दैट अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अभी भी बहुत रेलेवेंट है. बट इफ आई लुक एट जस्ट अरेंजमेंट, प्लेन अरेंजमेंट क्वेश्चन, अब उस तरह के क्वेश्चन कैट एग्जाम में एटलीस्ट नहीं आ रहा है. यू कैन लुक एट फॉर सम ऑफ द नॉन कैट एग्जाम्स जहां पर शायद वो क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं. बट इफ आई स्पेसिफिकली लुक एट कैट, दे आर नॉट डूइंग दैट. तो हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है? बिकॉज अरेंजमेंट का, एज आई सेड, द एप्लीकेशन ऑफ अरेंजमेंट इज स्टिल रेलेवेंट. तो अभी भी डीआई के सेट्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें कहीं कहीं अरेंजमेंट का बेसिक्स लगाना पड़ता है. तो फॉर बिफोर वी गेट इनटू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड हम लोग वो सब क्वेश्चन डिस्कस करें, उससे पहले इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस सिटिंग अरेंजमेंट का या लीनियर अरेंजमेंट का बेसिक्स. सो लेट अस बिगिन विद दैट. तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. ठीक है, तो सपोज ये स्क्रीन पर है, आप देख रहे हो 1 to 7, आई हैव मेड 7 पोजीशंस एंड बी नंबर 3 पे है. लेट अस अज्यूम, ठीक है, जो आपका लेफ्ट है वही इन लोगों का भी लेफ्ट है, राइट? सो 1 to 7 पीपल हु आर सिटिंग ऑन दीज पोजीशंस, उनका लेफ्ट एंड राइट इज सेम एज योर लेफ्ट एंड राइट. सो नाउ इफ द क्वेश्चन इज ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, वेयर इज ए? Now, our normal understanding is जब हम बोलते हैं that someone sitting to your left or someone sitting to your right, you're obviously looking at people who are adjacent to you, जो आपके बगल में बैठे हैं, right? But technically, from a reasoning point of view, when I say that A is to the left of B, where is A? So left, B के left में A कहीं भी हो सकता है. So A could be either 1 or 2. So there is no clear answer to this question. It would be either 1 or 2, right? Whereas if I say A is to the immediate left of B, then where is A? Then of course we know immediate left of B, definitely A is at 2. So the answer is 2. Now, of course this is the very basic thing. Someone who's not done arrangement at all, unke liye relevant hai. We move forward, we'll do a few more other things. Now let's say A is 2 places away from B, where is A? Now this is something which leads to a lot of confusion for people, especially those people जो arrangement कभी नहीं किए हैं. In fact हम इस तरह का language हम ये भी देखते हैं. We often say that 3 days from today. So we are often wondering 3 days from today मतलब कितने दिन बाद? बीच में 2 दिन होंगे या बीच में 3 दिन होंगे उसके बाद? तो it leads to a lot of confusion. So let us put to rest that confusion. So A is 2 places away from B. Where is A? तो 2 places away from B. तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल फंडा यूज करो. n places away. So n places away is equal to n minus places in between. तो यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं 2 places away, that means 2 minus 1, that is 1 place in between. तो B के बाद एक place in between होगा, तो या तो A यहाँ पर होगा या फिर A यहाँ पर होगा, because direction has not been specified. So our answer would be either 1 or 5. So similarly, if I were to say in this kind of arrangement, अगर मैंने बोला होता that let's say C is sitting 3 places away from B. So now we know 3 places away from B मतलब 2 places in between. तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ सिर्फ 2 ही जन है. सो देन योर आंसर वुड इमीडिएटली बिकम 6, राइट? तो बेसिकली हमें फंडा यही याद रखना है, n places away is equal to n minus 1 places in between. Let's move ahead. Now let's say ऐसा अरेंजमेंट दे दिया, C is between A and B, where is C? अगेन बिटवीन देखते ही हमारा इच्छा होता है कि C को यहाँ पे बिठा दें 5 पे, बट दैट विल नॉट बी करेक्ट बिकॉज द क्वेश्चन ओनली स्टेट्स C is between A and B. तो between मतलब वो कहीं भी हो सकता है, A और B के बीच में, राइट?
So answer could be any of 4 or 5 or 6. Whereas अगर सवाल ये होता है C is exactly between A and B, where is C? Then we know exactly in between, तो C definitely 5 पे हो. अब इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट, that let's say whenever, इसको शॉर्ट में आप लोग लिख लो तो याद रहेगा, अच्छा रहेगा ये सब. So whenever C is or let's say whenever someone is exactly between let's say two positions, okay, then those two positions will always have odd number of places in between. अगेन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है, बट कई बार हम इसको भूल जाते हैं. तो कभी कभी सवाल में दिया हुआ नहीं रहता दैट लेट्स से अगर मैंने पोजीशन कुछ ऐसा दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, राइट, एंड मैंने आपको ए का पोजीशन ही नहीं बताया, मैंने सिर्फ बी बिठा दिया, एंड नाउ आई एम आस्किंग दैट अगेन आई एम आस्किंग द सेम थिंग, सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी, वेयर इज सी. तो अगर पोजीशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे मेरे पास ए भी नहीं है सी भी नहीं है, सो आई हैव टू फिगर आउट बोथ ऑफ देम. In that case you need to remember one thing, because मैं बोल रहा हूँ C is exactly between A and B, तो A और B के बीच में definitely there will be odd number of places. Because अगर मैं previous case में देखता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने A को यहाँ बिठा दिया, then you cannot put C exactly in between, because यहाँ even number of places in between है, तो C के लिए exactly in between position मिलेगा ही नहीं. So if you have to find exactly in between वाला position, that means you need to have odd number of places in between. तो यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वी नीड टू फिगर आउट ए, वी नीड टू फिगर आउट सी. बी हमारे पास ऑलरेडी है, बी इज 3. तो अब मुझे पता है बी और ए के बीच में ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस होना चाहिए, सो आई कैन बिगिन विद ए एट 1. सो इफ आई हैव ए एट 1 देन ऑटोमेटिकली सी विल बी 2. ये एक पॉसिबिलिटी है. एक और पॉसिबिलिटी ये है, आई कैन पुट ए एट लेट्स से 5. इन दैट केस C should be 4. So C is exactly in between A and B. एक third possibility है, I can put A at let's say 7. So I will not even entertain the idea of keeping A at 6. Because अगर मैंने A को 6 पे डाल दिया, then number of places between A and B will become even. Possible नहीं है, इसीलिए हम बोल रहे हैं odd number of places in between. तो I will next think of putting A at 7. A अगर 7 पे है, then C will be at 5. तो 3 केसेस बन रहे हैं, राइट, एंड हर बार ए और बी के बीच में नंबर ऑफ प्लेसेस इज ऑलवेज ऑड. तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस बिटवीन ए एंड बी इज 1, यहाँ भी 1 एंड यहाँ पे 3. तो 2 प्लेसेस इन बिटवीन वाला केस को हम स्किप कर दिए, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर. ओके, आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंडीशन. ये कई बार लीनियर अरेंजमेंट, स्पेशली सेटिंग अरेंजमेंट में इस तरह का कंडीशन आ सकता है. देन हाउ टू डील विद इट. अब यहाँ क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ बी. तो ए के लेफ्ट में जितने लोग होंगे उतने ही बी के राइट में होंगे. तो इन अ वे अगर मैं बोलता हूँ ये सेंटर है, तो मैं बोल सकता हूँ ए और बी दोनों का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर शुड बी सेम. तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए का लेफ्ट इज इक्वल टू बी का राइट. तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज सेम, तो फिर बहुत सिंपल अप्रोच लगाएंगे. व्हाट आई विल डू इज आई विल थिंक ऑफ कि ऐसे कौन से 2 पोजीशन है जो सेंटर से इक्वली दूर है. इन दिस केस आई हैव 7 पोजीशन, तो 4 इज द मिडिल पोजीशन. तो मिडिल से एग्जैक्टली उतना ही दूर. तो आई विल ऑलवेज बिगिन विद एक्सट्रीम एंड्स. तो बेस्ट है आप ए और बी को स्टार्ट करो विथ 1 एंड 7. तो सपोज ए यहाँ पे है एंड बी 7 पे है, तो लेफ्ट ऑफ ए कितना है 0, तो राइट ऑफ बी इज ऑल्सो 0. अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं. A B can be 1 7 in any order.
I can also have B over here and A over here. अब A के लेफ्ट में there are 6 people, B के राइट में भी there are 6 people, तो दोनों साइड इक्वल हो रहा है. तो order is not important. A, B could be in any order, but उनका position होगा definitely 1 7. राइट. अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, हम एक स्टेप क्लोज आ जाते हैं दोनों तरफ से. सो देन इट वुड बिकम 2 and 6. अगेन आप चेक करके देख लो, अगर A 2 पे है एंड B 6 पे है, A के लेफ्ट में 1, B के राइट में 1. ऑन द अदर हैंड इफ आई पुट B हियर एंड A हियर, तो A के लेफ्ट में देयर आर 5 पीपल, B के राइट में भी देयर आर 5 पीपल, सो अगेन दे आर इक्वल. तो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, इट कुड बी A to B6 और B to A6. फिर अगेन एक और स्टेप क्लोज लेकर आते हैं. सो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज 3 5. So again it could be A, B, so that A का लेफ्ट में 2, B का राइट में 2, और it could be B and A. तो A के लेफ्ट में 4, B के राइट में 4. Again they are equal. Now if I try to bring them any closer, तो दोनों 4 पे आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे. तो एक्चुअली देर आर 6 पॉसिबल केसेस. हमने लिखा है 3, 1 7 2 6 3 5, बट it could be 1 7 in the order A B B A, again 2 6 in the order A B B A, and so on for 3 5, right. अब इसी सवाल में अगर number of position becomes even, then what happens, let's see. So again similar situation, number of person to left of A is equal to number of position to right of B. What can be position of A and B? Approach हमारा same रहेगा. Again we know the simple thing that A and B are equidistant from center, दोनों का center से distance same है. तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वी विल अगेन बिगिन विद एक्सट्रीम एंड्स. तो ए और बी को हम क्या पोजीशन देंगे, विल बिगिन विद 1 and 8. अगेन एज आई डिड लास्ट टाइम, इट कुड बी इन बोथ ऑर्डर्स. उसके बाद हम उनको एक स्टेप क्लोजर लेकर आएंगे. सो इट विल बिकम 2 7. देन एक और स्टेप क्लोजर, इट विल बिकम 3 6. and further closer. This time we can go up to the center because यहाँ पे center में दो position है. So we can go up to 4 5. So there are actually not 4, 8 cases, because 1 8 can be A1 B8 or B1 A8, and similarly for 2 7 3 6 4 5. तो हमारे 8 cases बन जाएंगे, right? तो next time जब भी ये condition आए, don't get confused, straight away begin from extreme ends. Extreme end से आप एक एक step closer करते हुए आओगे, आपके सारे case बन जाएंगे. All right, let's go to another condition. Okay, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है. यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज पोजीशंस, देन बोथ गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर. तो दोनों को एग्जैक्टली एक नया नेबर मिलेगा. व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ ए एंड बी? सो इफ ए एंड बी इंटरचेंज पोजीशन, एंड यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया गया, नेबर. नाउ स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है, स्टैंडर्ड असम्पशन है, यू कैन से, इन लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट, नेबर का मतलब एडजेसेंट पर्सन, राइट. That is one definition. Another assumption is that everybody is sitting facing the same direction. That is always a standard assumption, right? तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में बोल देते हैं देयर आर 7 पीपल सिटिंग इन अ रो, 4 आर फेसिंग नॉर्थ, 3 आर फेसिंग साउथ. इन दैट केस आपको पता है लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं. बट अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है, आपको डायरेक्टली कंडीशन दे दिया गया है, यू विल ऑलवेज अज्यूम एवरीबडी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन, राइट. सो दैट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड assumptions. So let's see, A and B interchange position, then both get exactly one new neighbor. अब एक बहुत सिंपल तरीका है, सपोज A is at 1, B is at 7, या उल्टा भी कर सकते हैं, A at 7 and B at 1. Could also be like this. दोनों केस में, अब सपोज मैं दो रैंडमली दो नाम ले लेता हूँ, C and D. They are sitting at 2 and 6, and बीच में और भी लोग बैठे. तो नाउ A का नेबर कौन है, अगर हम पहला केस लेते हैं, लेट दिस बी आवर केस 1. तो A का नेबर कौन है, C. अगर A और B इंटरचेंज करेंगे पोजीशंस, तो क्या हो जाएगा, A 7 पे चला जाएगा, B 1 पे आ जाएगा. अगेन A को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर D मिल जाएगा, एंड B को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर A मिल जाएगा. सो बोथ विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर. सो दिस satisfies the condition. So one way of resolving this kind of condition is that both A and B are at the extreme ends. ये एक तरीका है इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का. Similarly, if I go ahead and इसी
सवाल को मैं और एक तरीके से अगर देखूं, व्हाट इफ आई पुट ए एंड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, ए यहाँ पे बी यहाँ पे, सपोज यहाँ सी है यहाँ पे डी है, तो नाउ व्हाट हैपेंस, दे बोथ आर एडजेसेंट टू ईच अदर, सो दे बोथ आर ईच अदर्स नेबर। और अगर ये लोग पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, ए विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर डी, बी विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर सी, दोनों एक दूसरे के नेबर तो पहले से थे एंड दे विल कंटिन्यू टू बी, सो दैट वोंट बी क्वालिफाई एज अ न्यू नेबर, राइट। तो न्यू नेबर ए को एक ही मिलेगा डी, एंड बी को भी एक ही मिलेगा सी। So another way of resolving this situation is that both A and B are adjacent to each other. अब इधर पे एक और ट्विस्ट है। तो सपोज एडजेसेंट हमने लिख लिया, बट हमेशा एडजेसेंट चलेगा कि नहीं, लेट्स सी। लेट्स से एडजेसेंट अगर अभी हमने 2 3 ट्राई किया, सपोज हम 3 4 ट्राई करेंगे तो भी होगा, 5 6 करेंगे तो भी होगा, बट 1 2 या 6 7 करेंगे तो नहीं होगा। लेट्स सी, सपोज मैं बी को यहाँ बिठाता हूँ एंड ए को 2 पे बिठाता हूँ एंड यहाँ पे सपोज सी। नाउ इफ दे एक्सचेंज पोजीशन तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज बी विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर, बट ए को कोई नया नेबर नहीं मिलेगा, एंड क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट, दैट बोथ गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर। So that means just adjacent is not sufficient. So both A and B are adjacent to each other, but neither of them are at extreme ends. Right? So this is another important thing. तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड अगर हम 1 और 7 को छोड़ देंगे तो कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट पोजीशन विल क्वालिफाई। आप ए बी को 2 3 पे बिठा दो, 3 4 4 5 5 6 किसी में भी बिठा के देख लो, इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। और क्या तरीका हो सकता है इसी सिचुएशन को सॉल्व करने का? और एक तरीका ये हो सकता है, सपोज मैं ए को बिठाता हूँ 4 पे एंड बी को बिठाता हूँ 6 पे, एंड लेट्स से द पीपल इन बिटवीन आर, यहाँ पे सी आ गया, इधर डी आ गया एंड यहाँ पे ई आ गया। नाउ इफ ए एंड बी एक्सचेंज पोजीशन तो क्या होगा? नाउ वी नो ए एंड बी हैव अ कॉमन नेबर सी, एंड अगर एक्सचेंज करेंगे सी तो फिर भी उनका नेबर रह जाएगा, बट ए विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर डी, बी विल गेट एग्जैक्टली वन न्यू नेबर ई, तो दोनों को एग्जैक्टली वन न्यू नेबर मिल रहा है। सो अगेन इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। तो यहाँ पे वी कैन रिजॉल्व द सिचुएशन बाय सेइंग बोथ A and B have a common neighbor, right? In between. So that should satisfy the condition. Let's see, will it satisfy always? एक बार फिर से चेक करते हैं। अब सपोज मैं बोलता हूँ मैं A को डालूंगा 5 पे, B को डालूंगा 7 पे, यहाँ पे C, यहाँ पे D, एंड अब अगर हम एक्सचेंज करते हैं देन व्हाट हैपेंस? B will get exactly one new neighbor D, but A will not get a new neighbor because C तो already उसका neighbor था। तो just saying that both A and B have a common neighbor in between is not sufficient. इसके आगे हमें वही क्लॉज डालना होगा जो हमने पिछले वाले में डाला था, but neither of them are at extreme ends. extreme ends पे कोई नहीं होगा। तो अगर आप A और B को 1 और 7 पे नहीं बिठाओगे, then you will be able to satisfy this condition by taking any two such position जहां A और B के बीच में एक कॉमन नेबर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 4, यू कैन टेक 3 5, यू कैन टेक 4 6, तीनों केस में ये बन जाएगा। ऑलराइट, तो ये तीनों कंडीशन से हमने, ये तीनों ऑल्टरनेटिव से ऑफ कोर्स वी हैव सैटिस्फाइड दिस क्वेश्चन, इसके सारे कंडीशन हमने फुलफिल कर दिए। सो दिस इज द बेसिक दैट यू शुड हैव नोन फॉर लीनियर अरेंजमेंट। अब बहुत ही जल्दी वी विल आल्सो डू वन सेशन ऑन सर्कुलर अरेंजमेंट, उसका भी बेसिक्स हम कवर करेंगे, एंड आई विल शेयर द सेम इन द description of this video. All right, hope this was helpful. Thank you all.